Ankit, let's start your mock for the subject of strength of material for IOCL. Yes, sir. So tell me what do you understand by materials? Sorry, sir, repeat the question. What do you understand by materials? Sir, materials is basically sir, any substance, anything that is near anything that is near us is basically the material. Suppose there is a plastic, it is a material. There's a steel, it is the material. Mm-hmm. Okay. Yes, sir. And what do we do in strength of materials? Strength of Materials. sir, strength of materials is basically the study of load and effects of deformable bodies. What does that mean? Sir, strength of material means it is the study of load and its effect. And in load and its effect on deformable bodies means the body that can be deformed. Mm-hmm. Yes. So what kind of effects normally we talk about? Sir, actually, sir, your voice is not clear. Please repeat the question. No, not audible properly. Yes, sir. Okay. Sir, lag kar jata hai to, sir. So what are those effects that you're talking about? Sir, effects means, sir, first of all, the effects is when we apply the load on any deformable body, then its dimension gets changed, means the strain will get developed. And due to the strain, the stress gets observed in the body. These are the effects of the load. Okay. So you are saying that you talk in terms of stress, strains, etc., right? Yes. In SOM, we do the study of these stress and strain. So what is stress? Sir, stress is basically the internal resistance offered by a body against the deformation. Internal resistance. Yes. Can you repeat one more time? It is the internal resistance offered by the body to the external force. Yes. Sir, external force that we apply on the body, but the resistance that the body develops is the stress per unit area is the stress. Okay. Yes. So why we don't define the stress in terms of the force applied? Why only internal resistance? So basically, sir, first of all, when we apply the load on any body, then the applied load is the external load that we are applying. So it is not the stress. Then while after applying load, the body dimension gets changed. The strain will develop. And according to the Hooke's law, stress is directly proportional to the strain. So stress gets developed inside the body. It is not the external force. It is the internal resistance that I am saying. My question is why you are saying that stress is internal resistance per unit area? Why you are not saying this is the force per unit area? Yes. Okay. Sir, first of all, in any beam, when we apply the external load, suppose P, after cutting any section, the internal load is same as the external load. Indirectly, the nature of stress is same as the nature of external loading, but it is indirectly. As per the real definition, it is the internal resistance, but indirectly it is same as the external load per unit area that I am saying. So that is what is my question. My question is simple question. Yes, sir. Why you are saying internal resistance per unit area? Yes. When it is equal to the external applied load, why you're not saying this is the load per unit area? Sir, as per the standard definition that we study, it is the internal resistance. Why standard definition? Why we have defined that way? Why we have not defined that force per unit area? Sir, because force per unit area is the pressure, and we are not defining the pressure, and stress is basically a tensor quantity. So, as I think, sir, we define it in this way. No. Yes, sir. Why you are relating with pressure? Sir, force per unit area is basically the pressure that we study in fluid mechanics. But in strength of material, we are defining the stress. Sir, as I think, I'm not sure, sir. As I think, that's why we define it the internal resistance per unit area. Sir, because stress is that quantity that is developed in the body. That is
that is developed in the body, not from the external side. No, so what? So when you know that it is obviously the same amount of resistance is going to be developed, Yes, sir. then why unnecessarily bring this internal resistance into picture while defining? Why not define it simply that, okay, stress is force per unit area, that's all. Sir, it is, Simple to sir, understand. it is like the mathematical expression बन जाएगा ना सर, इसलिए सर मैंने define ऐसे नहीं किया. वो तो सर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया. सर जो बेसिक डेफिनेशन की मैं बात करूं सर, वो तो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस का अपॉन एरिया कहलाता है. सर मैं डायरेक्ट लोड अपॉन एरिया बोल दूं तो सर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में डिफाइन हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं किया. स्ट्रेन क्या है? व्हाट इज स्ट्रेन? सर स्ट्रेन इज द चेंज रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू ओरिजिनल डायमेंशन. Change in dimension to the original dimension. Yes. Yes, sir. So what is the need to define strain? Sir, first of all, when we have to find the stress, we can't find the stress directly. So to find the magnitude of stress, we need to find strain first. That's why we define the strain. No, why you need to define the strain? Even if you don't define the strain, even then you will be able to calculate the stress, isn't it? No, sorry, sir. We You can't cannot yes, we can't calculate the stress directly. Why you cannot calculate the stress directly? Sir, because for calculating the stress, we need to calculate the strain first with the help of strain gauges. First strain gets calculated, then stress gets found for any particular body. Let's say I have not given you the value of strain. Yes, sir. I'm stretching this and I'm not giving you the value of strain, right? Yes, sir. Yes, sir. Can you give me the value of, if I give you the value of force and if I give you the cross-sectional area, can you give me the value of stress? Sir, if you give me the force and the cross-section area, then I can calculate the stress mathematically. Sir, it is like the mathematical expression, sir. Mathematically, we can calculate the stress, and after dividing with the Young's model, we can calculate the strain. What is the other method? What is the other method? Except mathematics, what other method do you have to measure the stress? Yes, sir. Do you have anything? Yes, sir, I am, sir. Sir, so it is always the mathematics, that whatever you talk, it is the mathematics only. My question is very simple. I'm saying, let us say, I'm straining it, I'm elongating it. Yes. How much I have elongated, I am not telling you. Yes, I'm asking you to calculate the stress. Sir, sir, if you given me the load and the area, then directly by mathematical formula, I can find the stress. But I am saying it like, sir, physically. If we actually in real bodies, we don't know how much load is applied. Suppose I am giving the example of cantilever beam. That you will know. Let's say, for example, if you are carrying out the UTM tensile test in UTM. Right? Yes, sir. Yes, sir. If you are carrying a tensile test in UTM and you are stretching it, and during stretching, if you don't know how much is the elongation, but if you measure the cross-section area, you will be able to tell the stress. Sir, it is a testing machine, so we know the load. I am telling you the actual practical working. Suppose, sir, in actual Which practical? That's what I'm saying. What practical you are talking about? Tell me, give me the example. Sir, yes, sir. Sir, I am giving the example of cantilever beam. Suppose in cantilever beam, we don't know how much load is applied, how much is. So actually, we fit the strain gauge in that beam to find the amount of strain, so that we can find the actual failure stress. Failure stress is calculated after finding the how much strain is acting on that beam. Ankit, strain gauge, you are attaching it to find the strain. I'm talking about a stress. Yes, sir. Sir, first of all, after measuring the strain, my question is, okay, give me the answer. Give me the answer. Yes, without finding the strain, can I find the stress in the body? Sir, mathematically, we can find the stress in body. And why there is a, why don't we draw the stress versus deflection diagram? Why we draw stress versus strain diagram? Sir, I'm not sure about that. Sir, can I guess? Go ahead. Sir, basically, while drawing the sir,
On x-axis, we write that quantities that are independent. So as I think, sir, deflection is not an independent quantity. Strain, the ratio of deflection means the change in dimension, change in length, or the original dimensions is an independent quantity. That's why we write it on x-axis. What is independent quantity? Sir, independent quantity, sir, means जिस पे हमारा second function depend कर रहा है, जो किसी पे depend नहीं कर रहा. Okay, Ankit, do you know about pressure vessels? Yes, sir. So can you give me some examples Yes, of pressure vessels at your home? Sir, my gas cylinder, LPG cylinder. Mm-hmm. That's all? Yes. The LPG cylinder, which is a pressure vessel, and secondary, the tankers, the petroleum tankers that we see at the petrol pumps. These are actually all that. These are also the pressure vessels. Pressure vessels at your home. Okay, sir. Sorry, sir. Sir, at my home, I'm seeing first of all the LPG cylinders, which is the pressure vessel that I see daily. And sir, actually, I'm. That's all? Sir, give me, sir, 1 minute for thinking. Hello. Go ahead, go ahead. So sorry, sir, I can't remember at this moment. Okay. Yes. So let us say if I'm having a this pressure vessel, thin pressure vessel, one is cylindrical and other one is a spherical, right? Yes. Okay. In which case you are going to have the maximum value of stress? Sir, in cylindrical pressure vessel. In cylindrical, you are going to have the maximum value of stress. Yes, sir, cylindrical pressure vessel में maximum stress develop होती है. Spherical pressure vessel में कम stress develop होती है. इसलिए spherical pressure vessel better होता है in comparison to cylindrical pressure vessel. And why you are not using the spherical pressure vessels? Due to sir manufacturing constraints. और सर cylindrical pressure vessel cheaper होता है as compared to spherical pressure vessel. तो cylindrical pressure vessel में सर cylindrical shape होता है और दो dome type shape को weld कर देते हैं, जो कि हमें manufacturing cost जिसकी हमें कम पड़ती है as compared to spherical pressure vessel. That's why we use it. No, we can do the same thing. It is easy, not a very difficult task. Dome shape also we can make. In any case, you have to make a dome shape in case of cylindrical pressure vessel also. You have to draw it. There also, if you are having a sheet, you will just make it a dome shape this way. You will make a dome shape this way. You weld it, it becomes a spherical. In cylindrical also, making a dome shape this way, bringing them together and welding it. सर सेम मटेरियल की बात करूं, सेम मटेरियल दोनों में यदि मैं यूज कर रहा हूं तो उतने ही सर कम मटेरियल में सर ज्यादा फ्लूइड सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल में आ जाएगा. इसीलिए मैं बोल रहा हूं सर वो कॉस्ट, सर उसका कॉस्ट कम पड़ता है. Same, how can you say that on the same material, if you are using for these two vessels, you are having, that means as per you, cylindrical vessel is going to have more space compared to spherical. That's what you are saying? Sorry sir, I think I am wrong, sir. Sir, I am relating it with the runner that we use in the casting of production. Can I relate? Relate wherever you want to relate it. Yeah, sir. Basically, in the production technology, there is a term process called casting. In casting, there is a runner. There is a riser, sir. Riser, we have two shapes of riser, means a spherical riser, a cylindrical riser. Since the riser, the major task is the solidification time, which is better for the spherical riser. But we can't use that spherical riser. We use cylindrical one because we say there also, due to manufacturing constraints, spherical riser is difficult to make as compared to cylindrical riser. That's why I'm saying here also, sir. Okay. Yes. Okay.
So let's say I'm giving you what is principal stress, Ankit? The maximum amount of normal stress acting at any plane inside a body is called the principal stress. Maximum or minimum stress. Yes. Okay, repeat one more time. One minute. Sir, I am audible. Okay, okay. Okay, can you Yes, repeat sir. this Please repeat that. one more time? Can you repeat what is principal stress? The maximum or minimum amount of normal stress acting at any plane within the at any point acting at any plane of the stress or the stress diagram of any point is the principal stress. सर किसी भी बॉडी पे जो पॉइंट सर क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन है उस पॉइंट का 3D में स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन करता हूं तो उस पॉइंट के किसी भी एक प्लेन पे जहां मैक्सिमम और नॉर्मल और मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट करती है वो मेरी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होती है. यस. Okay, Ankit, let me just give you the feedback based on this. Okay. Yes. नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक दोगे तो ये सारी चेंजेस करके लानी है आपने, ठीक है? यस श्योर. यस. पहली बात तो ये है कि जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है मेरी वो ये है कि आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने इंटरव्यू में जो है ना लड़ाई करने नहीं जाना है, समझे? यस सर. इंटरव्यू में आपने सिलेक्शन लेने जाना है. यस सर. ये पर्पस है, ठीक है? यस. तो वहां पर कोई चीज दिल पे लेके नहीं घुसना है उसमें जब आपसे कुछ पूछा जाए तो. यस सर. ठीक है? यस सर. तो पहली बात, जैसे मैंने आपसे पूछा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, स्ट्रेस पे आ गया मैं, पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन. यस सर. उसमें ही आपने बहुत टाइम लगा दिया, ठीक है, कि ये बताने में कि मैंने पूछा आपसे कि क्या होती है स्ट्रेस, क्या होता है, आपने कहा जी इंटरनल रेजिस्टेंस. पहले आपने इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते रहे, बाद में आपने बोला फिर इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, फिर मैंने कहा कि व्हाई नॉट फोर्स. तो आप बोलेगे नहीं नहीं मैथमेटिकली हम वैसे ही करेंगे. यस. सी देयर इज नथिंग लाइक मैथमेटिकल और प्रैक्टिकल. मैथमेटिकल तो आपको यूज करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स तो आपको यूज करना पड़ेगा एज ए इंजीनियर कहीं भी जाओगे तो. यस सर. हाउ में चीज थोड़ी बतानी है आपने सिंपली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है कि सर एज पर दिस, क्योंकि बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजें आप बता सकते हो कि हाँ वैल्यू सेम होती है, रेजिस्टेंस तो डेवलप होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा, इक्विलिब्रियम में जब कंसीडर करते हैं तो वैल्यू सेम होती है. यस सर. एंड लास्ट में जो आप बड़ी देर की खींचातानी के बाद जो आपने आंसर किया कि क्योंकि इट इज बेटर टू टॉक इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज व्हेन लेटर स्टेज व्हेन वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ आल्सो, so it is better to talk in terms of resistance that a particular body offers. Yes. So we can speak definitely in terms of applied force, but it is better to speak in terms of the resistance offered. तो इसलिए हम रेजिस्टेंस ऑफर्ड की टर्म में बात करते हैं. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने स्ट्रेट, और जहां पर आपको लगता है कि आपका कन्फ्रंटेशन है तो कन्फ्रंटेशन में थोड़ी जाना है. यस सर. वो आपके साथ उलझ गया, वो बोलता नहीं 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 ऐसा नहीं होगा वैसा होगा, तो आपने उसको जस्टिफाई नहीं करना है. यस सर. आपने क्या करना है, केवल उतना जितना आपको लगता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको लगता है कि यह कि सर आई थिंक दिस इज दिस थिंग्स, ठीक है, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दिस मच. तो आपने उसको कन्वे करना है ऐसे. मुझे ऐसे लगा कि जैसे आप जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, नहीं नहीं सर ये नहीं है यही है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं बोलना वहां. वो आपका एक नेगेटिव एटीट्यूड शो करेगा, ठीक है, काउंटर करेगा. देखो मैं आगे आपको बताता हूँ कि एक और जगह ये काउंटर होगा. स्ट्रेन है आपकी, फिर मैं आपको पूछ लिया कि स्ट्रेन है, कि स्ट्रेन क्या होता है, आपने कहा चेंज इन लेंथ पर, सॉरी चेंज इन डायमेंशन पर ओरिजिनल डायमेंशन. फिर मैंने वहां पर आपसे पूछा कि क्यों करते हैं हम ऐसा, क्यों करते हैं. तो हाँ ठीक है, उसमें आपने ये बोला कि सर मुझे नहीं पता बट आई कैन ट्राई, आप कुछ लॉजिक दे रहे थे. वो अप्रोच काम चल जाएगी आपकी, ठीक है, कि हाँ आपको लगता है कि आपने स्टडी तो किया कि व्हाट एक्चुअल इज इट, आप उससे टाइम ले सकते हो. सर कैन आई थिंक फॉर अ फ्यू सेकंड्स. यस सर. बाई कर लिया उससे टाइम, सोचा कैन आई ट्राई सर, आई थिंक दिस इज द पॉसिबल रीजन. ये सेंटेंसेस ऐसे बोलने हैं ताकि ये लगे कि आप कोशिश कर रहे हो.
आप सोच रहे हो। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली आप बता नहीं पाए उसको, बट नॉर्मली क्या होता है कि जब हम रिप्रेजेंटेशन चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ करते हैं तो वो वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है। अलग अलग लेंथ की भी लेते हैं तो वो चेंज इन लेंथ मोर और लेस कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। हाँ सर। नहीं तो अगर अगर आप डिफ्लेक्शन के टर्म में बात करेंगे तो वैल्यू वेरी करती रहेगी, और हाँ वो सर। डिफ्लेक्शन जो है डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका लेंथ है स्पेन है। उसकी हाँ। स्पेसिमेन की, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो आपके लिए वो डायग्राम बन नहीं पाएगा ढंग का। ठीक है, हाँ सर। फिर मैंने पूछा आपसे प्रेशर, थिन प्रेशर वेसल्स कौन से होते हैं, घर में कौन से है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में कि आपसे जो पूछा जाए उसके ऊपर फोकस करना है, हाँ सर। यहाँ वहां नहीं जाना है। मैंने आपसे पूछा कि घर में कौन से प्रेशर वेसल्स है, आपने एलपीजी, अब उसमें जब आपने जवाब दिया एक जगह तो आपने मुझे ऑलमोस्ट मेरा क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ था और आपने काट दिया, फटाफट बोल दिया। आई थिंक दैट वाज समवेयर डाउन देयर, प्रिंसिपल स्ट्रेस में था। तो जो वो क्वेश्चन पूछेगा आपने वेट करना है उसके क्वेश्चन खत्म होने तक, हाँ सर। ये ध्यान रखना है। खत्म हो गया, वहां ऐसा नहीं है कि वो ये देखेगा कितनी जल्दी आपने आंसर किया, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वो आपकी अप्रोच देखेगा, आप कैसे अप्रोच करते हो, बेसिक नॉलेज चेक करेगा, दैट इज रिक्वायर्ड। जल्दबाजी वो दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। आपने काटना नहीं है बीच में, उसको बोलने देना पूरा आंसर क्वेश्चन। अच्छा, आपने बोला एकदम, जैसे आपने बोला एलपीजी, इसका मतलब है आपने वो सोचा नहीं बट आपने किया, ये आपके दिमाग में पहले था, मतलब आपने क्या था, पता था, आपको रटा हुआ था आपने। तो जो आप इमीडिएटली आंसर कर रहे हो इसका मतलब है वो आपने ऑलरेडी कहीं सुना होगा, इमीडिएटली बोल दिया। अब आपका कहां से पता चला कि आपको नॉर्मली बाकी चीजें पता नहीं है, क्योंकि आपने सोचा नहीं। मैंने पूछा सोचो, और आपने बाहर के एग्जांपल देना शुरू किया बट नॉट फ्रॉम द योर हाउस एंड अराउंड। मैंने कहा सोचो, आप एक भी नहीं बता पाए मुझे। किचन में गए हो, हाँ सर। एलपीजी तो देखा ही है। यस सर। किचन में और क्या दिखता है आपको प्रेशर वेसल का काम करता है? तो ज्यादा सॉल्ट स्ट्राइक नहीं कर रहा सर एकदम। प्रेशर कुकर है घर में? हाँ सर, प्रेशर कुकर। ठीक क्या है है। वो? प्रेशर कुकर। डिओड्रेंट प्रेशर यूज कुकर। करते हो? हाँ सर। डीओ यूज करते हो? हाँ हाँ सर। कैन है कैन है। स्प्रे की? हाँ हाँ सर, प्रेशर कुकर है वो। तो देने को आप ऐसे, तो इससे ये लगेगा कि हाँ प्रैक्टिकल चीजें आसपास जो देखते हो आप वो थोड़ा सोच के बता रहे हो। इवन दो आपको अभी पता है, मान लिया तीनों ही पता है, लेट्स से यू नो ऑलरेडी, यस सर। एलपीजी आपको पता है, ये पता है, वो पता है, तो पर ऐसे नहीं बोल देना इमीडिएटली एलपीजी ये करके। धीरे आराम धीरे से बोल दो, रहा आराम से दो, ये लगे कि हाँ इज थिंकिंग। है। ठीक है सर। ओके, फिर व्हाई वी डोंट यूज द सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल का जो एग्जांपल आ गया, क्यों नहीं यूज करते? हाँ सर। वहां वो लॉजिक आपका ठीक नहीं था। सर मैंने पढ़ा था इसलिए सर कह रहा था। हाँ सर। लॉजिक किसकी बात कर रहा हूँ मैं? स्पेस की लॉजिक की बात कर रहा हूँ। पढ़ अरे रखा है वो स्पेस ठीक है। वाला, स्पेस वाला, अच्छा सर मैं दो चीजें पहुंच रहा हैं उसके, दो ही, एक तो ये रहता है कि आपका सिलिंड्रिकल को बनाना थोड़ा आसान है, था। यही हाँ बोला सर, था आपने। ये सर बोला था मैंने। ठीक है, कि सिलिंड्रिकल को बनाना आसान है, स्फेरिकल को थोड़ा बनाना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है। ठीक है, और बनाया जा सकता है स्फेरिकल भी, सॉरी स्फेरिकल भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अगर आप करना चाहो, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, सिलिंड्रिकल है उसको ड्रॉ करता हूँ, ये शेप लाता हूँ, लेंथ ज्यादा होगी और क्या। हाँ सर। दूसरा लाया, उसको लाया यहाँ पर वेल्डिंग कर दी। ठीक है, स्फेरिकल में क्या होगा, दोनों ये शेप लाओगे आप, तो रादर ये शेप लाना और आसान रहेगा, शीट से तो लानी है मैंने ये, हाँ सर। और ये शेप लानी है, दोनों को फिर वेल्ड कर सकता हूं मैं। हाँ सर। ठीक है, तो वन ऑफ द रीजन कुड बी दिस, कि हाँ थोड़ा हो सकता है उसको हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज में व्हेन यू विल स्टार्ट यूजिंग इट इट बिकम्स डिफिकल्ट। एलपीजी की बजाय, जो सिलेंडर के बजाय अगर मैं स्फेरिकल देता आपको, घड़े की शेप का देता, सही बात, स्टेबल नहीं होता। स्टेबल नहीं होता। घर में तो चलो रख भी लेते, पर जिसने आपके घर तक पहुंचाना है वो, जो मैन्युफैक्चरर है जिसने वहां तक पहुंचाया, वो डेली उठा के लेके जाएगा वो। तो सही है। जो सेविंग आप इन टर्म्स ऑफ सोच रहे हो, इन टर्म्स ऑफ हो सकती है बिकॉज ऑफ दैट रिड्यूस द थिकनेस और डायमीटर, राइट, वो ओवरऑल जो डिफिकल्टीज हैं वो नहीं होगी।
मतलब वहां डिफिकल्टी आपको क्रिएट हो जाएंगी। तो थोड़ा आराम से उसको सोच के बोलो, पॉसिबल रीजन बता सकते हो आप, ठीक है। और अगर जहां लार्ज स्केल पे है, आई डोंट नो, जो एलएनजी सिलेंडर होते हैं, अब शिप होते हैं बड़े बड़े, एलएनजी कैरियर बोलते हैं हम उनको। बिल्कुल इससे होता है। शिप होता है पूरा पूरा आपका, जो 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 वेसल बना होता है वो आपका स्फेरिकल होता है, वहां पर बनाया होता। क्यों? क्योंकि आपका सेम थिकनेस पे, सेम डायमीटर पे आपको क्या करे, ज्यादा आप ट्रांसपोर्ट कर सकें एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, बिल्कुल यस। ऐसी एप्लीकेशंस में। अच्छा, दूसरी बात, डोंट स्ट्रे अवे फ्रॉम व्हाट यू आर एक्सप्लेनिंग। जहां पर जो आप दे रहे हो उसी को कॉन्टेक्स्ट में रखो, नहीं तो आप अपने आप को जो है फंसा रहे हो कहीं पे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला जी, आपने वो जस्टिफाई करने के लिए जो शेप है या स्पेस है उसको जस्टिफाई करने के लिए आप चले गए वहां पर कास्टिंग के ऊपर। हाँ सर। कास्टिंग आप पढ़ के नहीं गए होंगे, लड़ से आप इन डेप्थ पढ़ के नहीं गए। हाँ सर। आपने बोला जी मैंने ओवरऑल पढ़ लिया, ठीक है, और वो फंस के आप ले गए उसको रनर, और उसमें चैप्टर खोल दिया आपने उसके लिए। सही बात। तो आप वो चीज इंटरव्यू में कभी मत बोलो वेयर यू थिंक कि ठीक है मैं कोरिलेट तो करने के लिए तो ठीक है, बट वो वहां पे, क्योंकि वो बैठा नहीं है क्वेश्चन लेके पहले, वो जो आप बोलोगे वहीं से खींचेगा आगे। तो कोशिश ये करनी है कोई ऐसा एग्जाम्पल ना कोट कर दो जिसमें आप स्ट्रांग नहीं हो, और आपने वो एग्जाम्पल बता दिया फिर वहां से आगे इंटरव्यू में शुरू हो जाए, ठीक है। तो ठीक है एक ये ध्यान रखना है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में मैंने हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन पूछने पर आपने प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं किया उसको। सर, आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस की डेफिनेशन पूछी। हाँ, तो आपने बोला कि ऐसी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू स्ट्रेस एनीवेयर इन एनी प्लेन, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। पर प्रिंसिपल प्लेन वो होता, कौन सा होता प्रिंसिपल प्लेन? ऐसा सर प्लेन जहां पर शियर स्ट्रेस जीरो हो। सर आपने प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा था। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का पहले तो प्लेन कौन सा? ऐसा प्लेन जहां पर शियर स्ट्रेस जीरो हो, उस प्लेन के ऊपर व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, दैट इज द नॉर्मल प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये ठीक है सर ना? आप, हाँ सर, आप एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे अपन ये भी तो बोल सकते हैं सर, कोई बॉडी है, क्रिटिकल सेक्शन है, कोई पॉइंट डिफाइन किया, पॉइंट में उसका स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रेस टेंसर बनाया सर, थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में कोई भी प्लेन जहाँ पर नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम। हाँ थ्री सर। डी, थ्री डी पे जाने की जरूरत क्या है? आप वन डी पे ले लो। मैं ये ले लिया एलिमेंट, इसको खींच रहा हूं मैं, क्या इसमें हाँ प्रिंसिपल स्ट्रेस है? कहीं मैं खींच रहा हूँ, बताओ मुझे कहां पर है बिल्कुल प्रिंसिपल स्ट्रेस? सर, वर्टिकल प्लेन प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो वो ये नॉर्मल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेस है। क्यों है ये? शियर स्ट्रेस जीरो है सर प्लेन पे। तो यही तो बोलना था। सर मेरे को ये लगा कि सर अपन कोई भी प्रैक्टिकल काम तो थ्री डायमेंशनल को लेके करते हैं सर, इसलिए मैं तो 3D से रिलेट कर रहा था सर। आप सुनो जरा, आप हाँ ये सर। क्या, ये आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग बताता, थ्री डी पे क्यों जाने की जरूरत है? जब आपको पता है कि मैं अगर यूनिएक्सियल टेंशन या कंप्रेशन भी अप्लाई करता हूँ तो हाँ भी आपकी जो किसी प्लेन पे जो है वो नॉर्मल और शियर स्ट्रेस हो सकती है। तो प्रैक्टिकल लोडिंग होती नहीं है सर कोई ऐसी, इसलिए सर मैंने बोला नहीं सर ऐसा। कौन सी प्रैक्टिकल लोडिंग नहीं होती, बताओ। सर कोई भी सर रियल लाइफ के सर एग्जांपल लेना सर, बताओ कुछ भी सर। एग्जांपल बताओ। सर है? फैन की सीलिंग रोड का ही लेना सर। हाँ, सर बताओ। टॉर्शन भी लग रहा है, एक्सियल लोड भी लग रहा है। टॉर्शन कहाँ लग रहा है उसमें, बताओ। सर रोटेट कर रहा है, जो रेजिस्टेंस आ रहा है। वो बियरिंग किस लिए लगाई हुई है आपने? सर बियरिंग 100% हुई सर, वो पूरा उसको सब 100%। प्रिवेंट कर तो लेगी। आप उसको डिजाइन किसके लिए करोगे, बताओ। डिजाइन तो अपन सर करते हैं सर, ऐसे ही नहीं हो पाता ना सर। नहीं नहीं नहीं, हाँ सर। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपकी जो एक लिमिटेड नॉलेज है उसको आप एग्जाजरेट करके बोल रहे हो और उस पर यस एडमेंट हो रहे हो। यस सर। जो पंखे की रॉड है ना आपकी, हाँ सर। पंखे की रॉड में जो टॉर्शन है दैट इज द बेयर मिनिमम। यस तीनों सर। स्ट्रेचेस में सबसे कम है वो। अच्छा कौन सर। सी? टेंशन, लोड, हाँ सर। बेंडिंग। बिल्कुल सर। जब पंखा घूमेगा बेंडिंग, हाँ सर। फिर बेंडिंग प्रोमिनेंट होगी। और हाँ। टॉर्शन जो है, टॉर्शन बिकॉज आपने बीरिंग वहां यूज किया, टॉर्शन अच्छा, का इफेक्ट तो बेयर मिनिमम आएगा। मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमम होगी, बहुत बहुत कम। अच्छा सर। तो मैंने उसकी रॉड को डिजाइन करना, तो डिजाइन करना है मैंने बेंडिंग और उसके लिए, टेंशन अच्छा के सर। लिए। हाँ सर। ठीक है, चलो। हाँ सर। एनीवे, ध्यान रखो ये फीडबैक है, इसको इंप्रूव करो और नेक्स्ट उसमें जो है वो करना है, इंप्रूवमेंट सर लानी है। हाँ, ठीक है। धीरे 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 आंसर देना है, रुक के आंसर देना है। और हाँ चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की, पहली चीज तो आप हाँ एडामेंट हो रहे हो। सर, मतलब सर मतलब समझ नहीं पाया। एडामेंट का मतलब है आप जिद्दी बन रहे हो क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा सर। ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर। अब आप ये सोचो, यहाँ तो मैं आपको फीडबैक देने के लिए हूँ, यस सर।
वहां पर वो आपको निकालने के लिए है। सही बात। देयर इज अ डिफरेंस। तो यहाँ पर तो चलो मैंने आपको फीडबैक दे दी कि देखो आप जिद्दी हो रहे हो, और दूसरी बात जो वहां पर जो बैठा हुआ पैनल में वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, सही। वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, इसलिए अगर आप उसको एक लॉजिक दोगे तो वो काउंटर करके 2 लॉजिक देगा आपको, और उसको आप डिफेंड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर काम करो, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव एटीट्यूड शो करता है ये, उसका काम। जो खासकर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, पीएसयूज में क्या चाहिए होता है, पीएसयूज में आपको एक ओवरऑल पर्सनालिटी का पर्सन चाहिए होता है, उसको केवल टेक्निकल से कोई लेना देना नहीं है अच्छा सर। कि आप टेक्निकल में बहुत साउंड हो नहीं हो, तो वो एक ओवरऑल पर्सनालिटी देखेगा, तो इसको जो है वो नेगेटिव ट्रेट में देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो अंकित ये इंप्रूवमेंट करो जो यस सर, मैंने आपको श्योर सर। फीडबैक दी, और यस नेक्स्ट टाइम जब भी आप मॉक दोगे, फुल मॉक भी दोगे आप, तो वहां भी आपके कुछ एक जो गलतियां कमिट करते हो आप, तो वहां भी आपको फिर फीडबैक मिल जाएगी, पर इसको ये है कि इंप्रूवमेंट करनी है, इम्प्रूवमेंट का। रेक्टिफिकेशन करनी है, तभी फायदा होगा। ठीक है, यस यस। क्वेरी तो नहीं है कोई अभी? सर क्वेरी तो नहीं है सर, यही पूछना सर, आप स्कोर जो देते हैं ना सर स्नैप पे अभी जो। नहीं दूंगा, इस इंटरव्यू के लिए कोई स्कोर नहीं दूंगा मैं आपको, ये नहीं। अब आप नेक्स्ट टाइम आओगे इंप्रूवमेंट करके, हाँ सर। वो है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एटीट्यूड आपका इंटरव्यू वाला एटीट्यूड नहीं लगा। अच्छा सर। ठीक है, तो अभी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, डोंट वरी, वो कुछ नहीं है, पर अगर आप काम करोगे इनके ऊपर। ठीक है, हाँ सर, मैं एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं जैसे मैं बेसिक सर। नॉलेज, बेसिक नॉलेज पार्ट अगर हाँ बात करते हो सॉम हाँ की, तो हाँ दैट इज ओके, मुझे लगता है कि इतना कर सफिशिएंट है, मतलब अभी थोड़ा काम करो इसके ऊपर, हाँ बेसिक है आपको, हाँ बेसिक है, पर इसके ऊपर काम करने की जरूरत है हाँ सर। थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वो सर बहुत इन डेप्थ नहीं जाते हैं, ठीक है सर। पीएसयूज में बहुत इन डेप्थ नहीं आएंगे, बट बेसिक जो भी पूछा जाए, अगर वो पूछ लिया तो वो बेसिक एटलीस्ट क्लियरली बता पाए आप। जी सर। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ लिया, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस है, तो उसको लगेगा कि यार शायद इसको पता नहीं होगा फिर प्रॉपर, हाँ सर। तो शुरू में ही अगर आपने प्रॉपर नहीं बताया तो वो फिर उसको नेगेटिव लेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है।